શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજી એ આપણા દેશના ક્રાંતિકારી હતા અને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં એમએનો અભ્યાસ પ્રાપ્ત કરનાર એ આખા ભારતમાંથી ભારતીય પ્રથમ વિદ્યાર્થી હતા। અત્યારે જે અસ્થિ કળશ છે એ સામે આપણે ત્યાં મૂકેલા છે, જે સ્મૃતિ કક્ષ કહેવાય છે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજીના અને શ્રીમતી ભાનુમતીજીના જે અસ્થિ તમે જોઈ રહ્યા છો, જે કાંચના બોક્સ છે। अभी जो आप ये हाउस देख रहे हैं वो पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म स्थल है और यहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ था। देखिए कितना छोटा सा हाउस है और इसमें हमारे क्रांतिकारी का जन्म हुआ था। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहाँ पे चलाया हुआ न्यूज़पेपर है जिसका नाम है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। हेलो गाइस, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं देव मर ब्लॉग। आज हम आ चुके हैं गुजरात के कच्छ के और कच्छ में मांडवी सिटी के एक ऐसे महान योद्धा जिन्होंने जब अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया था और जब हमारे पूरा देश एकजुट होकर एक बड़ी सी लड़ाई शुरू की थी, उनके दौरान उन्होंने भारत नहीं, भारत के बाहर रहकर भी उन्होंने हमारे देश को बचाया था। और चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं और ब्लॉग की शुरुआत होती है यहाँ से। तो चलो आपको दिखाता हूँ। तो वो तत्कालीन समय के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों से उनका लोकार्पण किया गया था और इस ओर एकदम खुली जगह जहाँ पे यहाँ पे पहले एक फ्रेम लगा हुआ रहती थी और जिस पे श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ करता था। और अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो आप अभी जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं हाउस, ये कॉपी टू कॉपी जो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का जो हाउस था, इंडियन हाउस, वैसा का वैसा यहीं पे बनाया गया है। और ये इसके अंदर बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें रखी हुई है। मैं आपको लाइन वाइज सब कुछ दिखाता रहूँगा। और ये है हमारे दोस्त गिरीश जो यहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं। चलते हैं आगे और देख। અત્યારે આ જે સ્મારક છે એ ક્રાંતિ તીર્થ પંડિત શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજીનું છે અને પંડિત શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજી એ આપણા દેશના ક્રાંતિકારી હતા અને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં એમએનો અભ્યાસ પ્રાપ્ત કરનાર એ આખા ભારતમાંથી ભારતીય પ્રથમ વિદ્યાર્થી હતા। પંડિતજી પોતે સંસ્કૃત ભાષામાં વિદ્વાન હોવાને કારણે એમને પંડિતજીની પદવી આપવામાં આવી હતી। શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજીનો સ્વર્ગવાસ 30 માર્ચ 1930ના જીનીવા સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખાતે થયું હતું। એમણે જીનેવાની સરકારને એમની અંતિમ ઈચ્છા અપીલ કરી ગયા હતા। એમની ઈચ્છા હતી કે જ્યાં સુધી ભારત દેશને આઝાદી નથી મળતી ત્યાં સુધી એમના અસ્થિ અને સાથે એમના ધર્મપત્ની ભાનુમતીજીના અસ્થિ જીનીવામાં સાચવી રાખવામાં આવે। તો એમણે 1930માં જીનેવાની સ્થાનિક સરકારને 100 વર્ષ માટે બંને પતિ પત્નીના અસ્થિ એગ્રીમેન્ટ કરી ગયા હતા। 1930માં આપણે એમ ના કહી શકીએ કે આપણો દેશ ભારત ક્યારે આઝાદ થશે અને આઝાદી આપણને કઈ સાલમાં મળશે। તો એમણે 100 વર્ષનું વિલ તૈયાર કર્યું। આપણો દેશ 15 ઓગસ્ટ 1947માં આઝાદ તો થયું, પણ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજીની આ ઈચ્છાને કોઈએ પરિપૂર્ણ કરી નહીં। 73 વર્ષ પછી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજીની ઈચ્છાને ગુજરાત સરકારના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલના વડાપ્રધાન શ્રી માનનીય નરેન્દ્ર મોદીજી 22 ઓગસ્ટ 2003ના જીનીવા ગયા। ત્યાં શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા અને શ્રીમતી ભાનુમતીજીના અસ્થિ કળશ આપ અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ જીનેવા સ્વિટ્ઝરલેન્ડનું સેન્ટર પોઈન્ટ છે। ત્યાંથી બાય પ્લેનથી એમના અસ્થિ લઈ આવ્યા મુંબઈ અને પછી મુંબઈથી આ પ્રમાણે રથયાત્રા ફરી હતી, જે ગુજરાત રાજ્યના 17 જિલ્લાના 61 સ્થળમાંથી આ લાઇટના જે તમામ પોઈન્ટ તમે જોઈ રહ્યા છો એ દરેક સ્થળ વાઇઝ ત્યાંના નિવાસીઓએ વિરંજલી રથયાત્રાને સન્માન આપ્યું છે। અને છેલ્લે માંડવી લાલ સિમ્બોલ જે છે એ માંડવી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજીની જન્મભૂમિ
પંડિતજીનો જન્મ એક એવા વાતાવરણમાં થયું હતું 1857નું વાતાવરણ જે આપણા દેશમાં ક્રાંતિમય વાતાવરણ હતું અને એ સમયે 4 ઓક્ટોબર 1857માં માંડવી શહેરમાં અને ભાનુશાલી સમાજમાં પંડિત શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનું જન્મ થયું હતું. તો આ મુંબઈથી કરીને માંડવી સુધીનું વીરાંજલી રથયાત્રાનું રૂટ મેપ છે જે 2029 કિલોમીટરનું વીરાંજલી રથયાત્રા અંતર કાપી હતી અને આ રૂટ પ્રમાણે આપ ત્યાંથી જોઈ શકો છો મુંબઈથી કરીને માંડવી સુધીના વીરાંજલી રથયાત્રાના સન્માનના ફોટોગ્રાફ્સ છે. અત્યારે જે અસ્થિ કળશ છે એ સામે આપણે ત્યાં મૂકેલા છે જે સ્મૃતિ કક્ષ કહેવાય છે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજીના અને શ્રીમતી ભાનુમતીજીના જે અસ્થિ તમે જોઈ રહ્યા છો જે કાચના બોક્સ છે. ને આ જે સ્મારકમાં શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજીનું લંડનમાં મકાન હતું ઇન્ડિયા હાઉસ. એમણે 1905ની 1 જુલાઈના લંડનની ધરતી ઉપર એક મકાન ખરીદ્યું અને એમણે એ મકાનને નામ આપ્યું ભારત ભવન એટલે કે ઇન્ડિયા હાઉસ. આપણા ભારતીય સ્વતંત્ર સેનાનીઓ વકીલાતની ડિગ્રી માટે ઇંગ્લેન્ડ જતા તો એ તમામ ક્રાંતિકારીઓ જે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજીની ટચમાં હતા, દાખલા તરીકે વીર સાવરકર, મદનલાલ ધીંગરા, વીવીએસ અય્યર, ચંપકરમણ પિલાઈ, ભાઈ પરમાનંદ, હરનામસિંહ કેરી એવા અનેક ક્રાંતિકારીઓને શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજી સ્કોલરશિપ આપતા અને લંડનની ધરતી ઉપર રહેવા માટે તમામ સુવિધા એ ઇન્ડિયા હાઉસમાં પૂરી પાડતા. તો ગુજરાત સરકારે લંડનમાં જે મકાન હતું એવું ને એવું મકાન આ માંડવીની ધરતી ઉપર અહીંયા ઇન્ડિયા હાઉસ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ જ ઇન્ડિયા હાઉસ જે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજી માટે અને આપણા દેશ માટે ક્રાંતિ તીર્થ હતું અને ઘણા બધા ક્રાંતિકારીઓને શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજીએ તૈયાર કર્યા હતા લંડનની ધરતી ઉપર. એટલે આપણે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજીને ક્રાંતિકારીઓના ક્રાંતિ ભીષ્મ પિતામહ તરીકે આપણે કહી શકીએ છીએ. ધન્યવાદ. अभी जो आप ये हाउस देख रहे हैं वो पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म स्थल है और यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ था. देखिए कितना छोटा सा हाउस है और इसमें हमारे क्रांतिकारी का जन्म हुआ था. यहाँ पे और सारे भी लगाया हुआ है और ये हमारा पहला तिरंगा था जो मैडम कामा के द्वारा लहराया गया था. मैडम कामा
यहाँ पे जिनीवा के में हमारे अस्थि रखी गई थी पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, और उनकी वाइफ की अस्थियाँ जिनीवा में रखी गई थी, उनकी फ़ोटो है ये। और ये उनकी पत्नी भानुमती का पिक्चर है। और ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहाँ पे चलाया हुआ न्यूज़पेपर है जिसका नाम है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ऑन रोल सोसाइटी का ये सर्टिफिकेट है जिसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा का डेथ सर्टिफिकेट जैसा कुछ है। और ये उस समय की फ़ोटो है जब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी को अस्थि दी जा रही थी जिनीवा के राष्ट्रपति की तरफ से। और ये हमारे अभी समय में चलने वाली ये पोस्ट में जो स्टिकर लगते हैं वो। और ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के पत्नी जी अस्थि भानुमती जी की अस्थि है। और अभी यहाँ पे है पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की अस्थि यहाँ पे अभी रखी गई है, और एकदम मस्त जगह बनाई है। और ये है इंडियन हाउस का फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे ये सभी क्रांतिवीरों की तस्वीरें लगी हुई है। यहाँ पे सभी की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये हमारे सभी फ्रीडम फाइटर है जिनके लिए हम कुछ ऐसे भी है कि हम जिनके बारे में कुछ जानते नहीं, उनकी भी हमारे पास यहाँ पे फ़ोटो है। उनके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर है तो उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया हुआ है। उसके नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख लीजिए ये हमारे रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू, तो इसके नीचे पिक्चर है, उसके यहाँ पे लिखा हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था और किस समय में किया था और हमारे देश के लिए क्या किया था, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये है हमारे एक और फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है बहादुर शाह जफ़र, उनके बारे में भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। और ये बहादुर शाह जफ़र की पिक्चर है। यहाँ पे सभी फ्रीडम फाइटर की फ़ोटो लगी हुई है। पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, जिनके बारे में हमारे आसपास कुछ इतनी सारी किताबें नहीं होती है, और उन लोगों ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए होते हैं, मतलब अच्छे इंडिया को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए जो काम किया होता है उनके बारे में लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं ऊपर के सेकंड फ्लोर की तरफ। और अभी हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें पहली तस्वीर इस तरफ दिखती है। गैस कीजिए इन्होंने क्या किया था, गैस कीजिए आप लोग इन लोगों ने ये जो है फ्रीडम फाइटर लोग क्या करते थे कि जिसके कारण अंग्रेज़ों को भारी नुकसान होता था। तो गैस कीजिए और मुझे कमेंट में कीजिए कि इन्होंने हमारे क्या किया था और अंग्रेज़ों को किस तरफ से इन्होंने भारी नुकसान किया था।
और इस ओर है लाला लाजपत राय, ना ये है बाल गंगाधर तिलक, सॉरी माय मिस्टेक, बाल गंगाधर तिलक की पिक्चर। रास बिहारी बोस, और ये है हमारे बिपिन चंद्र पाल। मतलब हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई है, और उनके बारे में हमें बताया जा रहा है कि इन लोगों ने भी हमारे देश के लिए बलिदान दिया हुआ है। ये है हमारे वीर प्रताप सिंह। अभी इस और थोड़ी सी पिक्चर गायब है, मतलब इनकी कुछ मेंटेनेंस होती है। सुखदेव थापर, शहीद भगत सिंह की फ़ोटो यहाँ पे नहीं लगाई गई है, कुछ रीज़न के कारण कि नहीं लगाई, वरना होती ही है। और ये है शिवराम सिंह राजगुरु, ये है शहीद वीर उधम सिंह, और ये है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। इसके बाद आते हैं आचार्य सूर्य सेन, श्री अरविंद घोष, दुर्गा देवी, और ये है छगन खिराज, ये भी हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे। और ये है यहाँ से समुद्र भी, यहाँ से एकदम सीधे समुद्र का व्यू आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर मिनी थिएटर है जहाँ पे पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में पूरी स्टोरी बताई जाती है। अभी स्टोरी में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। यहाँ पर अगर स्टोरी में दिखाने जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलते हैं। यहाँ पे है चिल्ड्रंस प्ले एरिया जहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह है, और फिर यहाँ पे है कैंटीन जो कि कोविड-19 की सिचुएशन के कारण ये अभी बंद है, तो सरकार की गाइडलाइन अनुसार जब खुलेगी तब खुलेगी, बाकी हमें तो अभी कुछ पता नहीं है कल क्या होने वाला है। और इस और यहाँ पे बनाया गया है छोटा सा ऑडिटोरियम, यहाँ पे सभी कार्यक्रम होते हैं। जब भी कोई अच्छा सा मतलब 15 अगस्त 15 अगस्त हो गई या 26 जनवरी हो गई, तब यहाँ पे अच्छे से सब कुछ कार्यक्रम होते हैं। और अब इस और हमारे कच्छ की संस्कृति की कुछ चीज़ें, मतलब जो कच्छ की संस्कृति से लगते होते हैं वो। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का नाम जुबा पे लीजिएगा तो अपनी आंखों की पलकों को झपका लीजिएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का नाम जुबा पे लीजिएगा तो अपनी आंखों की पलकों को झपका लीजिएगा। इनके यादों के अस्थि कलश के आगे 2 बूंद आंसू बहा लीजिएगा। वंदे मातरम।